Okay, so today we are going to take a quick revision of interference and diffraction, and then we will do a comparative study in comparison. Interference और diffraction क्या होता है, comparison में हम लोग भी उसको भी study करेंगे. But for the time being, important is to go through again what is interference. Right. So interference में what we have learned, it is just a revision class because you need to understand very well interference में हम लोगों ने क्या सीखा है. Interference में first of all you have a screen, then I will draw a better screen so that you understand things exactly the way they are. So you have a screen, something like this. हमारे पास इंटरफेरेंस होने के लिए कम से कम 2 पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, और ये 2 पॉइंट सोर्सेस जो है, these 2 पॉइंट सोर्सेस मस्ट बी डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. तो ये जो 2 पॉइंट सोर्सेस है ये सिंगल सोर्स से डिराइव हुए हैं, ये असम्पशन है हमारा. सिंगल सोर्स से डिराइव होने की वजह से क्या होता है दैट the waves coming from these two sources are coherent. Coherent मतलब they have same frequency and they have constant phase difference. Then हमने around 7 to 8 conditions हमने लिखे हैं to obtain a steady interference pattern, and that is purely you can go through those conditions. सिंपल कंडीशन थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. मतलब ये जो दो सोर्सेज है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, सो ऑन सो फोर्थ. तो कंडीशंस आप देख सकते हो. द आइडिया वाज वेरी सिंपल ओवर हियर that we have rays coming from these point sources and they are basically interfering on the screen. So you have ray coming from these sources and they are interfering on the screen. Now since the interference, whether it will be bright or dark, मतलब constructive interference होगा या destructive interference होगा, it purely depends on the path difference from the two sources of light. So if I say this source here is S1 and this source here is S2, right, and this point over here is the center of the screen, let us say O, right, good, या फिर जो भी नाम हमने दिया होगा, whatever name we have given, right, we just don't care. तो यहाँ पे इस केस में S1O और S2O इक्वल है, मतलब पार्ट डिफरेंस 0 है. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोगों ने कंडीशंस डिराइव कर रखे हैं इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्रॉपर्ली. When you talk about two waves, these two waves are reaching at a point simultaneously, and let me draw two waves over here. बेसिकली वेव्स जो होते हैं दे ओवरलैप ऑन टू ईच अदर, तभी ही इंटरफेरेंस पॉसिबल है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ वन वेव ओवर द अदर. सो दिस इज वन वेव, लेट अस से. अब हमारे पास दो सोर्सेस है, तो आई कैन शो दीज टू वेव्स इन टू डिफरेंट वेज because these S1 and S2 are at two different positions. The wave coming from these 2 points will interfere at a common point. They will superimpose each other at a common point. तो ये पहला वेव है. अब डिपेंड करता है सेकेंड वेव, इफ इट इज इन फेज. इन फेज मतलब crest of one and trough of other, they are overlapping, right? Amplitudes may or may not be equal. Amplitude equal हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, right? Good. In this case, when crest and crest of two waves they overlap, or trough of one and trough of other overlaps with each other, then you have constructive interference. मतलब resultant wave जो होगा, that resultant wave
will have a amplitude which is addition of these two. इसका मतलब that particular point where constructive interference is occurring that should appear bright. क्यों? क्योंकि energy वहां पे addition हो गया, right? Good. So this is the only thing that is required to understand. So I'll just grab this diagram now. Good. Then मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए path difference delta between two waves either should be zero क्योंकि crest मैच कब होगा जब जीरो पाथ डिफरेंस होगा, अदरवाइज इट शुड बी लैम्बडा. वाई लैम्बडा? क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच होने के लिए अगर पहले जीरो पार्ट डिफरेंस था फिर आपने एक वेव को लैम्बडा से शिफ्ट कर दिया, यू हैव शिफ्टेड वन वेव, you have shifted crest of one wave, this is one wave and there was other wave, let us say this kind of wave, something like this, समझ लेना. तो either there should be zero part difference मतलब crest and crest should match, या फिर आपने एक वेव को रेड में जो वेव है उसको लैम्बडा से शिफ्ट कर दिया, you have moved one wave with a distance of lambda, वापस से crest crest मैच हो रहा है मतलब वापस से कंस्ट्रक्टिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. अगर मैं 2 लैम्बडा से शिफ्ट करूंगा तो भी वही होगा. So path difference for constructive interference should be 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. तो ये आपको मिलेगा in general n lambda, that is the condition for constructive interference, that is the condition to obtain bright band basically, right? Bright band, अच्छे से सुन लो, bright band. एक हो गया कि आप conditions को लिख सकते हो in terms of path difference. Path difference मतलब each wave is covering some path, each wave is traveling some distance. The difference between the distances traveled between the two waves by the two waves is path difference. तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या तो पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं या फिर फेज डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं. व्हाट इज फेज डिफरेंस नाउ? मेरे पास अगर एक वेव है, व्हाट इज अ वेव बेसिकली? वेव इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप फ्रॉम सर्कल. हमारे पास एक सर्कल है, राइट? सर्कल का सर्कल को दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ डायमेट्रिकली. सर्कल का टॉप मोस्ट पार्ट जो है दैट इज बिकम्स अ क्रेस्ट एंड बॉटम मोस्ट बिकम्स अ ट्रफ, राइट? मतलब अगर मैं इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, नीचे के पार्ट को शिफ्ट कर देता हूँ तो आई गेट अ वेव, इजी है, राइट? ओके, देन यू मस्ट नो कि अगर दोनों वेव के क्रेस्ट और क्रेस्ट को मैच होना है, इफ द क्रेस्ट एंड क्रेस्ट ऑफ टू waves they are supposed to overlap, तो फेज डिफरेंस मतलब एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं उसको, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव शुड बी जीरो. या फिर पहले वेव को फिक्स कर दिया, दूसरी वेव को मैं 2 पाई से घुमा के लाया, वापस से क्रिस क्रेस्ट मैच होगा. और 2 पाई से मैं घुमा के लाया सेकंड वेव को, वापस 4 पाई मतलब क्रिस क्रेस्ट मैच होगा. सो to get constructive interference, that means for the condition of overlapping of crest and trough of the two waves, the angular difference मतलब the phase difference between two waves has to be 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on. So in general 2n pi. This should be the condition for this one and this one should be the condition for constructive. Similarly destructive के लिए phase difference should be, क्योंकि एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मैच होना है तो इजी है. वी हैव अ वेव हियर, ओके. इमेजिन करो कि हमारे पास दूसरा वेव है. इनिशियली इन दोनों वेव दे आर इन फेस, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा है. हमें करवाना क्या था? हमें एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मतलब यहाँ पे लाना है, because the condition for destructive interference is that this should be out of phase by 180 degree, these two waves, or crest of one wave should match with trough of other. तो मुझे पहली वेव का मतलब ब्लैक में जो वेव है उसके ट्रफ और सेकंड वेव जो रेड में है उसके क्रेस्ट को मैच करवाना है. मतलब मुझे आई हैव टू शिफ्ट दिस वेव बाय दिस मच डिस्टेंस. व्हाट इज दिस मच डिस्टेंस? दिस मच इज लैम्बडा बाय 2. लैम्बडा बाय 2 क्यों? ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट अगर लैम्बडा है, वेवलेंथ है, तो वी आर मूविंग इट बाय हाफ डिस्टेंस, मतलब लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा. इसका मतलब द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स टू हैव द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस should be lambda by 2. तो lambda by 2 होना चाहिए, या फिर lambda by 2
प्लस लैम्डा होना चाहिए, मतलब यू हैव टू मूव दिस वेव बाय ईदर लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा, मतलब 3 लैम्डा बाय 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2. So in general, phase difference should be integral multiple of lambda by 2. And according to your books, you can either use m. If you use m, then m should start from 1. Or you can use n as I have used here, and n here is a whole number, right? Or you can write down phase difference in terms of n also, 2n plus 1 lambda by 2, and n is a whole number over here, राइट, इजी है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्रेस्ट और ट्रफ मैच होना चाहिए, वही हम लोग लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, और कुछ नहीं है, इजी कंडीशन। सिमिलरली आप फेज डिफरेंस अगर लिखोगे फॉर डिस्ट्रक्टिव, आपको पता है डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, वन, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मैच होने के लिए एंगुलर डिफरेंस शुड बी पाई, मतलब फेज डिफरेंस शुड बी पाई, क्योंकि मैंने अभी बताया एक सर्कल का टॉप मोस्ट पॉइंट क्रेस्ट मान लो और बॉटम में ट्रफ मान लो, तो एंगल कितना बनता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। तो इधर इट शुड बी पाई, और इट शुड बी 3 पाई, और इट शुड बी 5 पाई, एंड सो ऑन। मतलब इन जनरल डेल्टा शुड बी इक्वल टू 2m minus 1 pi, odd multiple of pi, or you can write down delta is equal to 2n plus 1 pi. एक ही बात है, depends on which symbol you are using, right? So this should be very 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 clear to you that phase difference should be integral multiple of lambda, or you can write down, I mean, or you can write down even multiple of lambda by 2. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज पाथ डिफरेंस should be integral multiple of wavelength, or it should be even multiple of lambda by 2. Put n equal to 0, you get 0. Put n equal to 1, you get 2 lambda by 2, that is lambda. Put n equal to 2, you get 4 lambda by 2, मतलब 2 lambda. तो बुक्स में ऐसा बोला जाता है, to obtain constructive interference, the path difference between two interfering waves should be even multiple of lambda by 2, and to obtain destructive interference, the path difference between two interfering waves should be odd multiple of lambda by 2. मतलब 0 कंस्ट्रक्टिव, लैम्बडा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव, 3 लैम्बडा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, फिर 2 लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव, फिर 5 लैम्बडा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव, 3 लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव, 7 लैम्बडा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव। इसी से समझ में आ गया हम लोगों को that this particular pattern, interference pattern, is nothing but it consists of alternate bright and dark bands with center being the bright band, क्योंकि delta equal to 0, मतलब O point on the screen marks what, center of the screen, center of the screen पे जो भी waves S1 और S2 से आएंगे, they will travel same path, equal path, and hence you can obtain a constructive interference. तो सबसे पहली चीज ये है that at the center of the screen you are supposed to get a constructive interference, so a bright band at the center, right? Then इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने बोला था कि let us say any other point be on the screen, उस पर कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा वो देखना है, राइट? तो समथिंग लाइक दिस, राइट? So we have some point P on the screen, and we wanted to know if this P point will be a bright point or a dark point, मतलब ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, मतलब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको वो देखना था। गुड, तो हम लोगों ने क्या किया, दैट व्हाट वी डिड इन दिस केस इज, हम लोगों ने सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया S1 and S2 का। So that perpendicular bisector of S1 and S2 is something like this. If you remember, मैं दो टॉपिक को यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों टॉपिक सेम ही है, दे आर नॉट डिफरेंट रियली। और ये जो डिस्टेंस था बिटवीन S1 and S2 was D, and if you remember, this point over here was called as M, and if you remember, इन दोनों सोर्सेस के डिस्टेंस को हमने स्मॉल d बोला था,
तो ये डिस्टेंस हो गया d/2 एंड ये डिस्टेंस हो गया d/2. एंड इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था that let us say this point P is at a distance x from the origin. And again, if you remember, we then draw a two perpendiculars, one from S1 onto the screen and other from S2 onto the screen. Then ये जो point है from S1 perpendicular drawn on the screen, that point, this is M1 and this was M2. ऐसा था ये, right? तो आपको दो right angle triangle मिले, right? Definitely for sure 100% guaranteed ये है कि interference pattern will look like this. Okay, constructive destructive, definitely ऐसा pattern दिखता है वो. There is no doubt about that. This pattern is going to be like this. What we wanted to check is only that कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा. हम लोग in terms of known parameters. What are known parameters? Distance between the two sources. Okay. What is the other known parameter? Distance between sources and the screen. मतलब S1 and S2 and the screen. इसका distance पता है. और ब्राइट और डार्क बैंड का विड्थ जो है वो सेम होगा. मैं सेम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. So this is how interference pattern looks like. And the distance over here, this particular distance was denoted by capital D. Right, correct. Then to check if the point P is constructive or destructive, मतलब whether it is bright or dark, हमने सबसे पहले S2P माइनस S1P ये निकालना जरूरी है. क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो S2P माइनस S1P है. तो what we were supposed to do is this. We want to find out S2P minus S1P. That is the question here. Then we have used triangles S1M1P and S2M2P. So from triangle S1M1P, and if you remember the diagram, S1P is hypotenuse and you know this angle over here is 90 degree. तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा एंड आई विल राइट डाउन S1P square is equal to S1M1 square plus M1P square, right? But from the diagram what we see is this distance over here from center to M1 is d/2 and from center to point P is x. इसका मतलब M1P ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आपका आएगा x माइनस d/2. Similarly PM2 distance. So similarly PM2 distance मतलब this distance over here will be x plus d/2. ये important है क्योंकि ये distance भी यहाँ पे d/2 था. तो we will use this things over here in the derivation, right? S1P square हमको find करना है तो I am just writing it as it is. S1M1 मतलब d square है because it is a distance between source and the screen. M1P as I told you is x minus d/2 का square. Similarly from triangle S2M2P you have S2P square as S2M2 square plus M2P square. Again S2P square will be equal to S2M2 is d square and M2P मैंने अभी आपको बताया x plus d/2 का square आया. हमें चाहिए था S2P minus S1P because that is nothing but the path difference. Why path difference? S2 से जो वेव है वो P पॉइंट पे पहुंचने का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है S2P.
S1 से जो वेव है वो P पॉइंट प्रोपोर्शनल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है S1P. तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस S2P minus S1P? So first of all, what we need to do is we need to write down this way S2P square minus S1P square. So I have D square plus X plus D by 2 whole square in one bracket, and S1P square is D square plus X minus D by 2 square in the other bracket. Then I need to simplify this. D square cancel hoga. So I will be left with x plus d by 2 square, x plus d by 2 square minus x minus d by 2 का स्क्वायर. x plus d by 2 के स्क्वायर को आप एक्सपेंड करो a plus b ब्रैकेट स्क्वायर से, x minus d by 2 के ब्रैकेट को एक्सपेंड करो a minus b ब्रैकेट स्क्वायर से, या फिर x plus d by 2 को अगर मैं a मानता हूँ और x minus d by 2 को मैं b मानता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? इट इज a माइनस बी, मैं माइनस करने के बाद लिख रहा हूं, इंटू ए प्लस बी. ओके, दैट थिंग यू शुड नो. कैंसल 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 कैंसल. ओके, तो ये आ गया आपका 2d/2, ये आ गया 2x, तो आपको मिल गया 2xd. So what you have obtained is s2p square minus s1p square equal to 2 times of xd, and what you obtained is s2p minus s1p into s2p plus s1p is equal to 2xd. So what you have now is s2p minus s1p, that is 2xd upon s2p plus s1p, and that is nothing but the phase part difference basically. But anyways, I'll write down later. Now s2p or s1p from diagram will be equal to d. So s2p and s1p will be approximately equal to d if D is large. D is large का मतलब क्या होता है? The sources are at a high distance, large distance, big distance from the screen. उस केस में roughly only for the right hand side of the equation which I have written over here. सिर्फ right hand side के लिए, left hand side पर डालोगे तो जीरो हो गया. पार्ट डिफरेंस जीरो तो खत्म, कंस्ट्रक्टिव पूरा का पूरा स्क्रीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. So that will be 2xd upon d plus d only for the right hand side. I am repeating it again, only for the right hand side. तो ये आ गया xd by capital D, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो what you have obtained is, therefore what we have is s2p minus s1p, and which was path difference delta, that is equal to xd by capital D. Now we know that for constructive interference, for constructive interference मतलब for the point P to be bright band, you should get path difference delta is equal to n lambda. हमने पहले डिराइव करके रखा है, बट पाथ डिफरेंस क्या है हमारे केस में? x d by capital D equal to n lambda. इसका मतलब क्या हो गया? that x equal to n lambda d by d. So the distance from the center of point P to become bright band should be n lambda d by d. Similarly, you can write same thing for destructive also. So for destructive interference also you can have same thing. So for destructive interference, what you can have is that the path difference that you have, it should be equal to 2m minus 1 lambda by 2. You can write the same in terms of n, 2n plus 1 lambda by 2. मैंने already बताया है, n starts from 0, m starts from 1. So that is the only difference. So you know what is delta. xd by capital D equal to 2m minus 1 lambda by 2. So x here is equal to 2m minus 1 lambda d by 2d. राइट, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसको x सफिक्स m और इसको x सफिक्स n लिख देता हूँ. इसका मतलब x सफिक्स n xn मुझे देगा, and also n here start from 0, remember
This will give me position of bright band. So कहाँ कहाँ bright बनेगा? If I put n equal to 0 in this equation, 0 पे. If I put n equal to 1 तो lambda d by d पे. If I put n equal to 2 तो 2 lambda d by d पे, and so on. और यहाँ पे if I put, and you know m starts from 1 over here, and if you put m equal to 1, if you put m equal to 1, lambda d by 2d. If you put m equal to 2, 3 lambda d by 2d, 5 lambda d by 2d, and so on. If you observe things very properly, तो center पे bright है 0, उसके बाद lambda d by 2d dark, फिर lambda d by d bright, फिर से lambda d by 2d dark. तो alternate bright dark bands बन रहे हैं, right? So these were the conditions for obtaining mathematical conditions. These are the distances for the point P to be either bright or dark, right? Back to the interference pattern. Coming back to the interference pattern, ये जो स्क्रीन पे पैटर्न दिख रहा है आपको, ब्राइट रेड मतलब ब्राइट बैंड, ऑन ईदर साइड्स यू हैव डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. फर्स्ट थिंग इज दैट द विड्थ ऑफ ईच ऑफ दिस इज इक्वल, सेम विड्थ है. तो हमको फ्रिंज विड्थ, क्योंकि हर एक बैंड को फ्रिंज भी बोलते हैं, so either that is called as a band or it is called as fringe. So we can find the width of each band or each fringe, and that will be called as fringe width or band width. First thing. दूसरा ये है that you can in fact obtain angular width. मतलब ये जो ब्राइट बैंड या डार्क बैंड का विड्थ निकालोगे, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं. वो कैसे लिखेंगे, दैट विल बी लेटर ऑन. वो आएगा जब मैं एक बार फ्रिंज विड्थ डिराइव कर दूंगा. सो फार सो गुड. इम्पॉर्टेंट था बेसिक्स. बेसिक्स मतलब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए इन टर्म्स ऑफ फेज एंड पार्ट डिफरेंस, ये जो एन लैम्डा और 2m-1 लैम्डा बाय 2 लिखा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए, दिस इज द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. और ये आता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑफ द टॉपिक यू आर स्टडिंग. आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है. दो वेव्स थे एक साथ एक जगह पे पहुंच गए तो क्या होगा, एडिशन ऑफ एनर्जी मतलब एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड्स. बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो अगर एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है तो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, अदरवाइज मिनिमम होगा. तो ये इतना अंडरस्टैंडिंग था, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दिया, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, हमने बता दिया कि पी पॉइंट पे S1 से रह जाएगा, S2 से भी रह जाएगा, उसका क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स. हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 मतलब स्मॉल डी. हम लोग मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड द स्क्रीन कैपिटल डी. हम लोग मेजर कर सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर और एनी स्केल बेसिकली. तो मतलब मुझे जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x कैपिटल डी स्मॉल डी. यू नीड शुड टू नोटिस दिस कि एग्जैक्टली वही आया है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, राइट. राइट. तो x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ऐसे कुछ इक्वेशन बने हैं आपके. तो दिस इज दैट पर्टिकुलर आइडिया दैट यू मस्ट हैव, ये होना ही चाहिए. नेक्स्ट थिंग दैट वी लर्नड वाज, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अभी उसी इंटरफेरेंस पैटर्न को मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे. व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपल थिंग, आई एम जस्ट शोइंग द सेम पैटर्न हॉरिजॉन्टली नाउ. ओके, राइट. देन as you should know that center is always brightest, तो सेंटर पे मैंने ब्राइट रखा है. then you have dark and then you have bright, something like this. तो more or less like this ऐसा कुछ आएगा.
और हर एक बैंड जो है फ्रिंज जो है वो इक्वल विड्थ का है ऐसा अज्यूम कर लेना। आई नो डायग्राम पे दिख नहीं रहा वैसा, बट प्लीज अज्यूम दैट दीज आर ऑल इक्वल विड्थ के फ्रिंजेस, more or less. Because we are not participating in any kind of drawing competition, so I am not really worried about how it looks like. Anyways, तो ये वो पैटर्न था जो हमको मिला. Our task is first to define what is fringe and then find out what is fringe width. Frankly speaking, ये जो रेड या फिर ब्लैक आपको पैचेस दिख रहे हैं, each patch is a fringe, but according to your book, according to your textbooks, what they say is, they say that the distance between the centers of consecutive bright or dark. So the distance between the centers of consecutive bright or dark bands is fringe. That is fringe width basically. So the distance between consecutive bright or dark bands is fringe width. मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को उन्होंने फ्रिंज विड्थ बोला है, दैट इज x. Bright bright या dark dark, I don't care, right? And let me first mark what is the center of the screen here. So center of the screen, let us say, is this. ये है center of the screen. मान लो, assumption that this is the center of the screen, right? So according to the definition, if the distance between consecutive bright or dark bands is fringe width, मैं मान लेता हूँ कि ये जो रेड में है, this is nth bright band, this is n plus 1th bright band. I know what is the distance of this nth bright band from the screen. मुझे पता है that xn is n lambda capital D by small d, if I am not wrong. हमने अभी अभी लिखा था. See, तो मुझे n plus 1th का भी डिस्टेंस पता लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ n plus 1th के लिए मुझे n की जगह पे n plus 1 रिप्लेस करना है. We know the distances of this bright band from the center. हमको चाहिए इनका width. By definition, subtract कर दो, मिल गया. So if I subtract n plus 1th bright band distance and the distance of nth bright band from the center of the screen, I will obtain this particular equation. And lambda d by d कॉमन निकाल लिया, n plus 1 minus 1 हो जाएगा अंदर, n plus 1 minus n हो जाएगा. So that is lambda d by d. तो ये मिल गया fringe width, मतलब center to center distance of two consecutive bright bands is this. बेसिकली जो ब्राइट बैंड है उसका विड्थ है, और ये जो डार्क बैंड है उसका विड्थ है, या फिर ब्राइट टू ब्राइट कॉन्जिक्यूटिव सेंटर्स का, या तो फिर डार्क टू डार्क कॉन्जिक्यूटिव सेंटर्स का डिस्टेंस है ये. सो दैट इज, you can similarly prove for dark also. So you have obtained fringe width. Okay, what you have obtained is fringe width. Good. Now ऐसा है that you can in fact write this fringe width in terms of angle also. Angular position, अभी ये तो width की बात हो गई. Let me take you back to this. Suppose अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे that this particular is the center, है ना, ये सेंटर है यहाँ पे, दिस इज सेंटर सी, लेट अस से सी या ओ जो भी होगा. उसके बाद ये है फर्स्ट ब्राइट बैंड, हाँ ये भी है फर्स्ट ब्राइट बैंड ऑन ईदर साइड, दोनों साइड पे फर्स्ट फर्स्ट. कैन आई फाइंड आउट एंगल बिटवीन सेंटर एंड द फर्स्ट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज, what we want to do is we want to find out what is the angle between center and the first.
राइट, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देखा दैट डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज नथिंग बट x, मतलब फ्रिंज विड्थ। मैं चाहिए तो आई विल विदाउट मेकिंग खिचड़ी ओवर हियर, I mean mess over here, I can show the same in this diagram. What I am asking you is, what I am telling you is, ये है center of the screen which is a bright band. Can we find out, can we find out this particular fringe width या फिर angular position of next bright band, angular position of next bright band? तो हम लोग क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है व्हाट वी नो इज, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एक्स, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। हमने सिर्फ वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल दिखाया है यहाँ पे। कैन आई राइट डाउन द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन टर्म्स ऑफ एंगल? यस वी कैन राइट डाउन। कैसे लिखोगे? इजी है। इफ यू रिमेंबर आर्क लेंथ x है क्या, लेंथ ऑफ आर्क x इज r into theta, तो d into theta, तो theta is x by d. yes, what is x? you already know, lambda d by d, and capital D cancel, तो lambda by d आ गया। तो angular distance of the first bright fringe from the center of the screen is lambda d by d. For second will be 2 lambda d by d. For third will be 3 lambda d by d. For fourth will be 4 lambda d by d. For nth will be n lambda d by d. राइट? तो ये हमने क्या लिखा है? ये हमने लिखा है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर। जैसे हमने पहले लिखा था एक्स एन, n lambda d by d, ये था पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड from the center in terms of distance, in terms of L raised to 1, मतलब मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। वही हमने लिखा है in terms of angle, right? In terms of angle, that is angular separation of nth bright band from the center. Point to remember. ये मैंने पहले नहीं लिया था, मैंने अभी लिया है क्योंकि मैं आगे जाके कंपेयर करने वाला हूँ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को। So this is all about interference. This is all about interference. Points to be noted. Minimum 2 waves are required which are moving in the same direction, which are reaching a point simultaneously. एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में नो इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड। दूसरा, एक वेव पहला क्रॉस होकर चला गया, दूसरा आधे घंटे के बाद है, नथिंग डूइंग, डजंट वर्क लाइक दैट। टू वेव्स मस्ट रीच एट द पॉइंट साइमल्टेनियसली, राइट? In interference, you have equally spaced, equal width, bright and dark alternate fringes, center being bright, then dark, then bright, then dark. Right? Correct. हमने इस केस में सोर्सेस दो लिए हैं, दोनों सोर्सेस पे कंडीशंस है, coherent, monochromatic and other conditions. And how do you produce coherent sources? Lloyd's mirror and बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, वो आप खुद कर लोगे। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है सोर्स और स्क्रीन के बीच में कोई और ऑब्स्टैकल, कोई और स्लिट कुछ भी नहीं है। देयर आर सोर्सेस एंड अ स्क्रीन, देयर आर सोर्सेस एंड अ स्क्रीन, राइट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंसेस? तो now we are moving to something called as diffraction, which is basically interference but after bending of light. तो डिफ्रैक्शन में क्या था, मैंने आपको बताया था, मैं और बता रहा हूँ। सपोज यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, ये एक लाइट का सोर्स है यहाँ पे। सपोज
उस सोर्स ऑफ लाइट के बीच में एक ऑब्स्टैकल आ गया, एक ऑब्स्टैकल आ गया और हमारे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन इज समवेयर हियर मान लो, ओके राइट। देन the rays coming from this source, they are supposed to move in a straight line. Expectation तो यही होता है that the rays should move in a straight line. These rays should move in a straight line. Okay, and then अगर मैं ऑब्स्टेकल को A B नाम देता हूँ तो स्क्रीन पे मैं A डैश और B डैश लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन ये है this particular region A dash B dash should be geometrical shadow region, GSR, geometrical shadow region, मतलब यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आना चाहिए, no light should enter here, और A dash के ऊपर और B dash के नीचे should be illuminated region, IR, illuminated region, because the light is going to reach there. Same is true if you have a slit. Same is true if you have a slit. So, in case of slit, I'm going to show you the same diagram but a smaller one. तो यहाँ पे एक source है. Instead of having a obstacle, I have two obstacles and two obstacles separated by small distances. मतलब slit बन गया वो. Then I have a screen. यहाँ पे एक screen है हमारे पास. I don't know why orientation is going wrong, but it's okay. Doesn't matter really. Then the rays of light coming from the source, they are supposed to travel something like this. Okay, मान लेना कि वो सिमेट्रिक है, आई नो इट इज नॉट सिमेट्रिक, एनीवेज ये स्लिट अगर ए बी है तो ये ए डैश बी डैश मार्क करता हूँ. इस केस में उल्टा है, इस केस में ए डैश बी डैश शुड बी इल्यूमिनेटेड रीजन, ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे देयर शुड बी geometrical shadow region, no light should enter, okay, because the light travels in straight line. This is what we expect. पर होता क्या है, पर होता ये है that the light bends at the corner of obstacles or slits. Spread हो जाता है light, या फिर bend बोल सकते हो, bending is spreading basically. So the bending of light at the edges of an obstacle or spreading of light from a slit is called as diffraction. पर ये bending कब होता है? When the size of obstacle or the size of the width of the slit is equivalent to wavelength of the light used. अगर आपने wavelength लाइट का 10⁻⁶ मीटर रखा है और ऑब्स्टैकल ए बी या स्लिट का विड्थ ए बी ये 10⁻⁶ मीटर है, नियर अबाउट, only in that case light will bend and light will enter into geometrical shadow region, something like this, something like this. ऐसा कुछ होगा उस केस में, right? The bending of light and spreading of light into geometrical shadow region is called as diffraction. Okay, इसको हमने बोल दिया diffraction, right? But again, in diffraction, what is different? तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रैक्शन के बेसिक्स क्लियर करेंगे. बेसिक्स मतलब यहाँ इफ यू रिमेंबर, इंटरफेरेंस में दो सोर्सेस, एक स्क्रीन, इन बिटवीन नथिंग. यहाँ पे एक सोर्स, ऑब्स्टैकल और स्क्रीन, मतलब स्क्रीन और सोर्स के बीच में देयर इज ऑब्स्टैकल और अ स्लिट, राइट? गुड.
नाउ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंसेस, अगर ये जो ए बी ऑब्स्टेकल या फिर ए बी जो स्लिट है, इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। ऑब्स्टेकल हो या स्लिट हो, दोनों काम एक ही कर रहा है, लाइट को बेंड करवाने का, मतलब डिफ्रैक्ट करवाने का। तो हमने इनको एक कॉमन नाम दे दिया, एंड दैट कॉमन नेम इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। नाउ द आइडिया इज, if the distance of the source from the diffracting system and of the screen from the diffracting system is infinite, then such a diffraction is called as Fraunhofer diffraction. Okay, if the distance between the diffracting system and the source and the distance between diffracting system and the screen is finite, then such diffraction is called as Fresnel diffraction. Right, हमने देखा है. If I'm not wrong with the names, I think I'm not wrong with the names. Yes. Okay, good. Then मैंने आपको बताया था that is the only difference. But what we have understood from that, अगर diffracting system से source infinite distance पे है, मैंने बताया था any source of light emits either a spherical wavefront, अगर point source होगा तो, अगर ट्यूबलाइट जैसा होगा तो cylindrical. So any source of light emits either spherical or cylindrical wavefront. But if the source emitting spherical or cylindrical wavefront is at infinite distance, you are just receiving a small part of that big sphere or big cylinder. That means you are just receiving a plane like this. So you are just receiving a part of the sphere. ये एक बड़े sphere का part है. So you are receiving just a plane. मतलब the wavefront falling on the diffracting system coming from the source is a plane wavefront, right? Similarly, because screen is also at large distance, the wavefront falling on the screen is also a plane wavefront. Fresnel में nothing like that. The wavefront falling on the diffracting system and on the screen can either be spherical or cylindrical. Right. Third point of differentiation, is it practical to have screen and source at infinite distance? नहीं. But हमारे Fraunhofer diffraction के condition के हिसाब से कंपल्सरीली प्लेन वेव फ्रंट चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉनहोफर के केस में हम लोग लेंस यूज कर लेते हैं, क्योंकि लेंस क्या करता है, बायकॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, बायकॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग रेज को, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट को पैरेलल रेज मतलब प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है. तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में यू नीड अ पेयर ऑफ बायकॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट लेंस इज यूज्ड टू convert spherical wavefront coming from the source to convert into plane, so that the wavefront falling on the diffracting system is a plane wavefront. फिर जो diffracting system से जब light आगे जाएगा, it again spreads, क्योंकि that is diffraction ना. diffraction में क्या हो रहा है, light is spreading. मतलब source से निकला spherical, lens लगा के convert किया, plane बना दिया. slit से निकला वापस spherical, फिर lens लगा दिया, convert करके plane बना दिया, and then it is allowed to fall on the screen. That is the basic difference, right? Okay. हमारे syllabus के according we are just supposed to study one type of diffraction, that is Fraunhofer diffraction due to single slit. So what we are supposed to study is Fraunhofer diffraction due to single slit. Okay. अब सिंपल लैंग्वेज में पहले डिफ्रैक्शन समझा देता हूँ आपको मैं. इमेजिन करो कि आप एक रियल क्लासरूम में बैठे हो. ओके, यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम ऑल इन वन रो. सब एक ही रो में बैठे हो, अब लास्ट में क्लास के आखिर में बैठे हो. आई कम इनसाइड क्लास विद अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. मेरे पास चॉकलेट का बॉक्स है एंड आई एम थ्रोइंग चॉकलेट्स एट यू. क्या होगा, किसी के पास ज्यादा चॉकलेट पहुंचेगी, किसी के पास कम चॉकलेट पहुंचेगी, राइट?
अब ये किसी के पास ज्यादा या कम पहुंचने का मतलब थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। सेंटर में मतलब एग्जैक्टली मेरे फ्रंट में जो बैठा है उसके पास ज्यादा पहुंचेगा, फिर एट एंगल्स कम होता जाएगा। सी, maximum number of chocolates, then no chocolate, then less chocolates, then no chocolate, then less chocolates. This is how it is spreading. Diffraction भी वही है. So what we are doing in diffraction is this. Now I'll explain you this chocolate analogy, which is not good analogy, but समझाने के लिए ठीक है. सबसे पहले हम जो भी पैटर्न रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए एक स्क्रीन की जरूरत है. दूसरा, लाइट जो आ रहा है वो आ रहा है एक स्लिट से पास होके. So we have, I will use less width of these lines. So we have some slits. और क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो एक ही स्लिट की बात कर रहा हूं मैं. ओनली वन स्लिट वी हैव. ये एक स्लिट है. स्लिट मतलब पैरेलल ओपनिंग होता है, ऐसा छोटा विंडो होता है बेसिकली. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट the wavefront falling onto the slit is a plane wavefront, मतलब the rays are coming parallel. और उससे पहले पैरेलल वेव्स कैसे बने, रेस कैसे बने, तो हमने एक लेंस वहां पे यूज किया है, दैट आई विल अगेन शो लेटर. मैं दिखा दूंगा चाहिए तो. ओके, राइट. तो एज आई टोल्ड यू दैट ये जो रेज है ये पैरेलल क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे एक लेंस लगाया गया था. क्योंकि इस लेंस के जो पहले जो सोर्स था दैट वाज अ पॉइंट सोर्स, बल्ब था, इट वाज इमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब स्फेरिकल वेवफ्रंट, उसको कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में इस लेंस में. देन हमें और एक लेंस की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो we are talking about Fraunhofer diffraction, so we need another lens. Then ये जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है इसको मैं बोल रहा हूँ P0. ये जो स्लिट है उसको बोल रहा हूँ AB, और ये जो टोटल स्लिट का विड्थ है दैट इज स्मॉल a, और जो स्लिट का सेंटर है दैट इज C. तो एनी रे ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू CP0, जो भी रे CP0 को पैरेलली जाएगा, that will focus at the center of the screen. तो वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे उसका फोकसिंग होगा. एंड ऑल दिस रे विच आर पैरेलल टू CP0, CP0 को पैरेलल जो भी रेज है वो सेंटर पे फोकस होंगे, एंड दे हैव ट्रैवल्ड इक्वल पाथ टू रीच P0. ऊपर का रे और नीचे का रे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके P0 पे पहुंचा. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है द रेज रीचिंग पॉइंट P0 don't have any path difference, मतलब they are satisfying the condition for being bright, because constructive interference का कंडीशन ये था. गुड. तो ऊपर के हाफ से मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग यहाँ भी कंफ्यूजन था, एज आई नोटिस्ड, ये जो ए बी है यहाँ पे ये एक वेव फ्रंट है. अकॉर्डिंग टू यूजेंस थ्योरी, every point on this wavefront is a secondary source of light. Correct. देन हमने इस वेव फ्रंट को या स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक CA अपर पार्ट, एक CB लोअर पार्ट. अब अपर पार्ट के किसी भी पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकलेगा, अगर वो रे ऑफ लाइट CP0 को पैरेलल है तो उसका फोकसिंग होगा सेंटर पे, एंड दे हैव ट्रैवल्ड इक्वल पाथ, इक्वल डिस्टेंस टू रीच P0, मतलब दे विल ऊपर CA और नीचे CB, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से जो भी रे निकला, इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस, सो दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बट
वी डोंट से इंटरफेरेंस हियर, क्योंकि ये है बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब ये डिफ्रैक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। लाइट बेंड हुआ मैं बताऊंगा बाद में बेंड हुआ। ओके, गुड, राइट। इस केस में सेंटर पे जो ब्राइट बैंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम, क्योंकि दैट इज द ओनली पॉइंट इन द पैटर्न विच अपीयर्स ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइट वही दिखता है। ओके, एंड इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स जैसे वहां पे था, इट इज इन फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस, सर्कुलर स्पॉट्स और इलेप्टिकल स्पॉट्स। तो ये आ गया आपका ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, राइट। So maximum chocolates at the center, those were sitting in front of me, मतलब those the point on the screen which is right in front of the source, right in front of the source. Okay, that particular point will receive maximum light because वहां पे light पहुंचने के लिए light bend हो ही नहीं रहा है, that is the idea. Good, then as I told you, light also bends because we are studying diffraction, मतलब light का bending तो होने वाला है, and that we have to show that light is bending. So light is bending, and light will bend in both direction, ऊपर भी नीचे भी, it will bend in both direction and at different angles. तो लाइट का बेंडिंग जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, डिफरेंट एंगल्स पे होगा। फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक ही एंगल पे बेंडिंग दिखा रहा हूँ। So for the time being, what I am doing is just showing that the ray of light is bending in one direction and at one particular angle. ये जो light bend हुआ, that light will reach the screen somewhere at point P. तो याद करो एनालॉजी बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वहां पे भी हमने बोला था सेंटर पे ब्राइट, फिर हमने बोला था बाकी कोई पॉइंट पी होगा तो वहां क्या होगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो वही यहाँ भी वही कर रहे हैं, there is some other point on the screen called as P. इस P point पे क्या होगा, what this point P will look like, whether there will be no light मतलब डार्क, और यहाँ पे डार्क को बोलते हैं मिनिमा, या फिर इट विल बी अ ब्राइट। अगर ये ब्राइट हुआ तो इट कैनॉट बी एज ब्राइट एज द सेंटर, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा तो है, लाइट तो है, बट लेस लाइट कंपेयर टू द सेंटर, तो इसलिए सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मैक्सिमम लाइट सेंटर पे है, उससे कम लाइट है तो सेकेंडरी। गुड, देन ये पी पॉइंट ब्राइट है या डार्क है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेयर्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए एंड बी। तो सबसे पहले ए और बी से जो रे आ रही है उसका पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, किसी भी दो रे से पाथ डिफरेंस निकालना है तो एक रे से दूसरे रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद दिस एंगल हियर बिकम्स 90 डिग्री। आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ई नाम देता हूँ, ए और ई के बाद द ट्रैवल्स द वेव्स ट्रैवल सेम डिस्टेंसेस, मतलब जो भी पाथ डिफरेंस आया है वो ई से पहले आया है। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ so that you get a good idea of what I am speaking. So I am talking something like this. I will modify that diagram, don't worry about it. तो ये हो गया आपका
looks like good now, 90 degree. Then I also need to draw some lines over here. ये एक लाइन दिखाना जरूरी है बिकॉज हमको एंगल्स की बात करनी है यहाँ पे. तो द आइडिया इज प्रिटी सिंपल. ये एंगल था थीटा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, दिस इज ई, दिस इज एंगल थीटा. ये टोटल एंगल 90 है, तो ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा. अब ये टोटल एंगल 90 है, तो ultimately finally you will obtain this angle to be theta, right? And path difference, as I told you, path difference between rays coming from A and B, extreme points of the slit, क्योंकि extreme मतलब first and last point of the slit, that is BE, है ना? क्योंकि A और E के बाद the waves rays will travel same distance, तो जो भी path difference है वो BE है. So what I can say from this triangle, I can say sine theta is opposite side, which is B, upon hypotenuse, which is AB. So BE is AB sine theta. But BE was nothing but path difference, and AB was nothing but width of the slit, A sine theta. तो हमको कम से कम path difference in terms of slit width and in terms of angle of diffraction मिल गया. Good, right? Now the question is, P पॉइंट ये ब्राइट कब होगा, ये डार्क कब होगा? मतलब जो डार्क पॉइंट्स होते हैं वी कॉल देम एज सेकेंडरी मिनिमा. सेकेंडरी मिनिमा क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल मतलब सेंटर पे तो मैक्सिमा ही बनने वाला है, इसलिए इसको डायरेक्टली हम बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा. या मिनिमा मतलब प्लूरल है. बुक्स कैन से सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है. आई कैन से सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है. ओके, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पॉइंट्स वेयर यू हैव नो लाइट. नो लाइट मतलब डार्क. अब इमेजिन करो, हम लोगों ने स्लिट को दो टुकड़ों में बांट के रखा है, अपर हाफ सी ए एंड लोअर हाफ सी बी. अगर ए से बी, ए और बी से जो लाइट आ रहा है उसमें अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो ए और सी से जो लाइट आएगा उसमें पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 होगा. सी और बी में से जो आएगा उसमें लैम्बडा बाई 2 होगा, राइट. मतलब हमने एक ही वेव फ्रंट को दो टुकड़े करके उस अज्यूम किया है कि इंस्टेड ऑफ वन वेव फ्रंट यू हैव टू वेव फ्रंट्स. मतलब यू हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट. क्यों किया? इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन क्या था? यू नीड टू हैव मिनिमम टू सोर्सेज ऑफ लाइट. तो हमने इसलिए अज्यूम किया कि जो वेव फ्रंट है ए बी, लेट अस से ये एक नहीं है, दो है, सी ए और सी बी, राइट. अगर ए और बी एक्सट्रीम में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, तो AC और CB that will be lambda by 2 lambda by 2. Similarly, as I told you, Huygens principle बोलता है कि हर एक point on the wavefront AC is going to act as secondary source, right? Similarly, every point in the lower of CB is going to act as secondary source. Good. So for one point source corresponding to the upper half, ऊपर के हाफ में एक point source है, उसको corresponding मतलब ए से सेम डिस्टेंस पे, सी से सेम डिस्टेंस पे, राइट. तो फॉर एवरी लाइट सोर्स और पॉइंट इन द अपर हाफ यू हैव अ करस्पॉन्डिंग लाइट सोर्स इन द लोअर हाफ, सच दैट इस ए में से, इस पॉइंट में से और ये अदर पॉइंट में से, अपर हाफ और लोअर हाफ में से जो रेज निकल रहे हैं, द पार्ट डिफरेंस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2. ये लैम्डा बाई 2 क्यों आया? क्योंकि एक्सट्रीम ए और बी में अगर लैम्डा था, तो अपर हाफ और लोअर हाफ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में से तो रेज आएंगे, उनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही होगा, क्योंकि all points are basically sources of light. So these point sources in the upper and lower half, they will emit light, and that light will satisfy the condition of minima if A and B have a path difference of lambda.
only if A and B have a part difference on lambda, so the points from the upper and lower half, the rays coming from upper and lower half will satisfy the condition of part difference being lambda by 2, right? मतलब डिफ्रैक्शन के केस में कंडीशंस उल्टी है, उल्टी मतलब इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव देता था वो यहाँ पे आपको मिनिमा देगा, मतलब a sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा हुआ तो मीन्स दैट दिस इज द कंडीशन, दिस आर द लोकेशंस वेयर यू गेट डार्क मतलब नो लाइट मतलब मिनिमास। और मैं इसको थीटा n लिखूंगा, क्यों n लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, देखो ब्राइट सेंटर उसके बाद डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, मतलब देर आर डिफरेंट पॉइंट्स एट विच यू हैव नो लाइट, इसलिए n, so you get sin theta n as n lambda by a, that is the condition for secondary minima, right? तो इसका मतलब what you have is, let me see if I can change this color of the screen, देखने दो if I can change it, I don't know if I can, नहीं हो रहा, ठीक है, anyways तो हमें मिल गया सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन, फिर हमको देखना है सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज सेकेंडरी मिनिमा ओवर हियर। तो आई डोंट नो इफ आई हैव एनी डार्क थिंग अवेलेबल, तो एनीवेज तो ये तो समझ में आ गया, मैं आपको यही दिखा देता हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू विदाउट स्क्रीन, अभी स्क्रीन को हटा देते हैं हम लोग, जरूरत नहीं स्क्रीन की हमको, गॉन, ओके गॉन, वी डोंट नीड इट नाउ। नाउ ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा आपके पास डार्क मतलब नो लाइट के पॉइंट बनने वाले हैं। So you are going to have something like this on the either sides. These are the positions of secondary minimas, but this is first minima. First minima क्यों? क्योंकि center के exactly बाजू में बने तो first minima. Good. Now let us talk about secondary maximas. As I told you, conditions are exactly उल्टा। exactly उल्टा मतलब जो destructive का condition था वहाँ पे interference में यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव का, एंड इफ यू रिमेंबर डिस्ट्रक्टिव का था इवन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे होगा फॉर मैक्सिमा द सेम कंडीशन, बट व्हाट इज ए, डेल्टा इज ए साइन थीटा एन, अगर आप चाहो तो एम भी यूज कर सकते हो अप टू यू, है ना, 2m-1 भी यूज कर सकते हो, तो दैट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2। बस याद रखना अगर m यूज करते हो तो पुट m स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन एनीवेज इसमें फर्क नहीं पड़ता है, विल टॉक अबाउट दैट। तो मुझे मिल जाएगा साइन थीटा एन इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a। So these are the positions of secondary maxima। मतलब देखो ऐसा है, सेंटर पे तो ब्राइट ही आएगा, मैं जब मिनिमा की बात कर रहा हूँ आई कैन नॉट पुट n इक्वल टू 0 हियर, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर मैं n इक्वल टू 0 डालता हूँ मतलब साइन थीटा 0 आ गया, साइन थीटा 0 का मतलब सेंटर की बात चल रही है, थीटा 0 मतलब जो लाइट डिफ्रैक्ट हुआ ही नहीं, जो लाइट स्ट्रेट अवे पास हो गया। रिमेंबर चॉकलेट्स, the chocolates which have not diverted here and there, they have just went straight, right? Good, right? सेंटर पे ब्राइट, तो यहाँ पे n जीरो से स्टार्ट ही नहीं करते हम लोग, हम बोल देते हैं अरे जीरो मतलब सेंटर मतलब वो तो हमेशा ब्राइट ही होने वाला है, तो बोलते हैं n स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब कौन कौन से पोजीशन पे, कौन कौन से पोजीशन पे आपको ब्राइट मिलेगा, लैम्डा बाय a, टू लैम्डा बाय a, सी लैम्डा बाय a एंड सो ऑन। यहाँ पे मिलेगा आपको डार्क मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ओके। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल बोल रहा हूँ मैं, दीज आर द पोजिशंस ऑफ मिनिमास। सिमिलरली ब्राइट का मिलेगा, मैक्सिमा का मिलेगा सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो सेंटर में है। इफ यू पुट n इक्वल टू 1 तो 3 लैम्डा बाय 2a, 5 लैम्डा बाय 2a एंड सो ऑन। तो देखो 0 पे सेंटर मैक्सिमा, गुड, ओके राइट, फिर लैम्डा बाय a पे मिनिमा, फिर
3 लैम्बडा बाई 2a पे मैक्सिमा, फिर 2 लैम्बडा बाई a पे मिनिमा, फिर 5 लैम्बडा बाई 2a पे मैक्सिमा। इफ यू नोटिस ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट ब्राइट डार्क चल रहा है। यहाँ पे दोनों साइड्स पे है जैसे इंटरफेरेंस में था, तो यहाँ पे सिर्फ मैं n की वैल्यू +-1 +-2 मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्क्रीन ऑफ द सेंटर यू हैव minimas and maximas, right? मतलब how the pattern is going to look like is this. oh, sorry, अब कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इंटेंशनली सर्कल का साइज छोटा कर दिया। सर्कल का साइज छोटा करने का मतलब सिर्फ इतना ही है, सर्कल का साइज छोटे करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो ब्राइट पॉइंट है इट इज ब्राइट but it is less bright than the center. So this is how a diffraction pattern looks like: brightest, then dark, then less bright, then dark, then less bright, then dark. So this is what is called as a diffraction pattern. Interference में ब्राइट डार्क इक्वली स्पेस थे, हर एक का विड्थ इक्वल था, राइट? दे आर रेक्टेंगुलर बैंड्स। डिफ्रैक्शन में they are not rectangular bands, they don't have the same width everywhere, they don't have the same brightness everywhere, right? So diffraction is interference but after bending of light, ये difference है। अब इंटेंसिटी पैटर्न कैसे दिखता है? सेंट्रल जो ब्राइट है, सेंट्रल जो ब्राइट बना है उसका विड्थ निकालना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हम लोग ये सब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो दिस वाज अ डेडिकेटेड रिवीजन सेशन एंड यस, यू हैव टू रिवाइज।